is going on. First, let's come to that, Kedia ji. How are you seeing what's going on? और ट्रम्प साहब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, मेरे को लगता है शायद उनको भी खुद पक्का पता नहीं है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। वो तो कभी डंप करते हैं, कभी पंप करते हैं, तो उनका कभी जंप करते हैं, तो उनका अपना अलग ही एक उनका हिसाब किताब चल रहा है। लेकिन ठीक है, अल्टीमेटली जो वो बोलते आए थे कि हाँ मैं इस तरह से इम्पोज करूंगा, उन्होंने जो भी है उन्होंने टैरिफ लगाया और इंडिया को थोड़ा सा बख्शा है, उन्होंने थोड़ा सा कम टैरिफ लगाया है। इसके लिए आपको खुशी मनानी चाहिए। बट वो खुशी दिख नहीं रही है मार्केट्स में। आप कैसे ये खुशी मनाएंगे? अब जो लोग हमें देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी राइट नाउ? वी हैव ऑलरेडी सीन सम रिकवरी एज वी आर स्पीकिंग, Kedia sir, in small cap and mid cap. Is this an opportunity for those who are brave to come into the markets and show faith? Let me tell you one thing. I will put it in a different way. Forget about the market for a while, because market is very sensitive, as we all know that. It keeps on fluctuating. But ultimately, I think that it is good for India. हम लोगों को ultimately ये अपने को self एक awareness हमारा ये create होएगा। और मेरा एक point है that we have been imposed with what 26% tariff, and I read somewhere it is actually 27% compared to 54% in China. तो हमको इतना बड़ा leverage हमको मिला against Vietnam, against Thailand, against other countries. इसमें भी अगर ये blessing in disguise है, मेरे को लगता है इसमें भी अगर हम इसका फायदा नहीं उठा सकें, और अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को अगर अभी भी हम इस तरह से वर्ल्ड लेवल पर अगर नहीं ला सकें, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य हो गया। मेरे लिए लगता है कि इसके अंदर में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। Okay, Vijay ji, namaskar. Alex here. I'm just wondering, in a world that seems to be getting more protectionist from India's perspective, of course, there's a large consumption story right here as well. Unfortunately, the initial readings that we're getting from a few companies is not encouraging, at least at this stage. Perhaps it will improve as government spending starts kicking in the new financial year, etc. So, where would you be deploying? And I know that you are a firm believer in the building material space. You have invested in some of these companies in the past. So how would you be strategizing in the new year? You see, one thing I'll tell you, we have to find the stories in whatever is happening. हर समय आपको सब माहौल अनुकूल नहीं मिलने वाला है कि सब आपके लिए फेवर का होगा और every time you will make money. We had been making money for last 3-4 years. Now this is time to consolidate. And second, coming to the story, I feel that is still like tourism is a big story which is going to play out for next 10 years. So, and there are so many proxies to tourism. It could be hotels and could be airlines and could be so many other things also. So I think this is what government has also understood, that India has a huge potential. You know, as I had said somewhere, now we have $250 billion of revenue coming from tourism. It can be scaled up to maybe $1 trillion in next 7 to 8 years, or by the end of this decade. And I think government has understood. So I think tourism should do well, and selectively, like other infrastructure, should also do well. And ultimately electrification is the order of the day. It is going to stay here, whether tariff or non-tariff or domestic or export or whatever. So I think there are few stories which should play out in this decade. Mr. Kedia, this is music to the ears, right? Because I'm literally seeing a change of stance from Vijay Kedia, the investor, the maverick investor. So आपने 2-3 pockets तो बता दिए. These are all, at least the response that you gave to Alex's question, वो थोड़े छोटे pockets थे. बड़े सेक्टर में क्या व्यू है? मतलब which will essentially drive the stability of the Nifty, कि बैंकिंग में हुआ या फॉर एग्जाम्पल आईटी में हुआ या स्पेशलिटी केमिकल्स में हुआ, जहाँ पे ये टैरिफ्स का इम्पैक्ट है, लेकिन आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में भी, सुदर्शन एटसेट्रा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. व्हाट डू यू डू विद सम ऑफ द लार्ज पॉकेट्स? No, I will keep on holding them, Neeraj. मेरे को उसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा. I hold some pharma companies also. I will keep on holding to it. And so मेरे को लग रहा है government is also focusing on infrastructure, as you said, the large sector. I think infrastructure should do well. पावर सेक्टर एक्चुअली इतना स्कोप है पावर के अंदर में, चाहे वो पावर फाइनेंस की कंपनियां हो जो पावर को फाइनेंस करती हो या लोन देती हो या जो भी हो, या ऐसी कंपनियां, उनके अंदर में भी बड़ा मेरे को स्कोप लगता है. पावर से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, ये सब हमारी डोमेस्टिक स्टोरी है, सब डोमेस्टिक हमारी ये सब स्टोरी है. इसके अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके अंदर में चाइना क्या कर रहा है या यूएस क्या कर रहा है. तो हमको थोड़ा सा सेफ होकर चलना है, यू राइटली पुट इट आउट. So maybe index-wise, I am not very bullish. I don't see that index is going to, we are going to see a new high in next 2 years, or I don't know about 3 years.
So I am not in that camp. So I think index should consolidate here, and individual stock should do according to their merit. And one more thing I would like to add here, Neeraj. As I had so many on so many platforms, I had said that nowadays after 2003, bull markets are longer and bear markets are shorter. I think this bull market made a top in September 2024. From that, just I don't have any money पक्का data मेरे पास में नहीं है, लेकिन I have seen after 2003 that this जो bear market आता है, it gets over in 9 months. So accordingly, एक खाली तुक्का के लिए मैं बता सकता हूँ कि I think so maybe by June this 2025 or maybe next 2-3 months time, this market will make its bottom. That obviously nobody knows, but more or less मेरे को ऐसे लगता है index will consolidate and individual stocks will have their own territory or will chart their own story. Okay, well, one hopes, केडिया जी, आपके मुंह में घी शक्कर and everything else that you desire. एक छोटा फॉलो अप क्वेश्चन ये है केडिया जी के पीपल आर, मतलब हमारे जो पहले गेस्ट थे वो भी बोल रहे थे कि अभी तक द क्रेडिट ग्रोथ एटसेट्रा इज नॉट पिकिंग अप, बट गवर्नमेंट ने जो जोर लगाया, पेडल लगाया है, वो लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में लगाया है. आरबीआई इज कंसिस्टेंटली डूइंग स्टेप्स एज वेल, पीएलआई स्कीम्स आर देयर. क्या आपको लगता है कि डोमेस्टिक ग्रोथ इटसेल्फ विल इम्प्रूव? आपकी इंडिविजुअल कंपनीज के साथ आप जब बात करते हैं, आर पीपल टॉकिंग ऑफ अ पिकअप इन ग्रोथ या अभी भी ग्रोथ स्लगिश है? नहीं, ये डिफरेंट पॉकेट्स का डिफरेंट एक्चुअली नजरिया है, लेकिन मोरलेस मेरे को ऐसे लगता है कि मैं जो भी कंपनियों के साथ में बात करता हूँ उसमें कोई स्लो डाउन की बात नहीं कर रहा है नीरज भाई कि हाँ मेरा आगे ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है या आगे कुछ कंफ्यूजन है, ऐसा तो नहीं लग रहा है. हो सकता है जब वो स्लो ग्रोथ की बात कर रहे होंगे ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे को ऐसे लगता है कि आगे जाके देखो 6-6.5% भी अगर हम ग्रो करते हैं, एक बात तो पक्का है कि हम ये 6-6.5% से इससे हम चाइना तो कभी नहीं बन सकते 25-50 साल के अंदर में इस ग्रोथ से, अगर ये 8-10% तक नहीं जाती है. लेकिन 6-6.5% की ग्रोथ भी अगर हम करते हैं उसमें भी कई इंडस्ट्रियां ऐसी होंगी जो 15-20% ग्रो करेगी, कई होगी जो 0% ग्रो करेगी, जैसे वो कंज्यूमर एफएमसीजी वगैरह जो इनके अंदर में जैसे आप बता रहे थे डाबर वगैरह का जो भी है, हो सकता है वो ग्रोथ नहीं करेगी. तो ऑन एंड एवरेज जो 6.5% की ग्रोथ आएंगी उसके अंदर में कई इंडस्ट्री है विच विल राइज फास्टर देन द एवरेज ग्रोथ रेट. केडिया जी, हम भी बात कर रहे थे कि आपका टैरिफ सॉन्ग तैयार है कि नहीं? नहीं अभी तैयार नहीं है. आइडिया दे दो, आइडिया. हाँ, अब देखो, अब तारीफ क्या करूं उनकी. मैं आपको आइडिया अच्छा आइडिया दिया. अरे अच्छा आइडिया दिया यार, सही तारीफ क्या करूं उनकी जिसने मुझ पे लगाया और मार्केट को डुबाया, मुझको सताया. क्या बात है, क्या बताया, क्या दिखाया. ये तो देखिए ऑन द स्पॉट कोलैब हो गया हमारा. दिस इज अ कोलैबोरेशन, जुगलबंदी. बट नो टू कमिंग बैक टू द पॉइंट केडिया जी, जो आप कह रहे हैं कि देयर आर पॉकेट्स ऑफ opportunity. The kind of business updates we're seeing, what we will see in Q4, how important does this become? If we are looking inwards, the world is become. World is looking inwards, तो हमें भी हमारा देखना है. From our point of view, corporate India की strength पर आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ. मैं ये जो 6-6.5% का ग्रोथ जो चल रहा है ना, मैं पर्सनली, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं एक सिंपल छोटा सा इन्वेस्टर हूँ, लेकिन मैं इससे बहुत खुश नहीं हूँ. जिस हिसाब से दुनिया बढ़ रही है और जिस हिसाब से मैं बार मेरा ध्यान खाली चाइना पे जाता है कि हम लोग बार चाइना पर हम लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो मेरे को लगता है ये 6-6.5% की ग्रोथ रेट जो इंडिया की है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. हमको इसको 8-10% की ग्रोथ रेट लेकर आना पड़ेगा. और इसी बोलकर मैंने ये बोला कि इस ग्रोथ में इंडेक्स वापस कोई नया भाव दिखा दे 2-3 साल, ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि इंडेक्स कोई नया दिखाए. कुछ पॉकेट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सजग होना पड़ेगा. यू हैव टू वेरी केयरफुल, यू हैव टू स्टडी रियली वेरी हार्ड कि मैं किधर पैसा लगाऊं, किधर पैसा नहीं लगाऊं, क्योंकि जो इजी मनी कमाने का जो टाइम था वो मार्केट में एक बार ओवर हो गया है. अब जो आगे आने वाला टाइम है वो थोड़ा मेहनत का, मशक्कत का टाइम है इसके अंदर में, और वो पैसा इतनी जल्दी नहीं आएगा जितनी जल्दी पैसा पहले आया था. ऐसा मेरा मानना है. तो जो ग्रोथ है जो इंडिया की वो ठीक है, 6-6.5% ग्रोथ ठीक है, लेकिन हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी
कोई मतलब नहीं है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी क्या, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होकर भी आप $250 बिलियन आप ऐड करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ वो चाइना 5% भी ऐड कर देगा, हमसे फास्टेस्ट नहीं है, स्लोवेस्ट बोल दो भैया, तब भी $1 ट्रिलियन ऐड कर देगा वो। तो मेरे को चाहिए इंडिया का विकास ऐसा हो कि हम 8-10% का, और वो एनिमल इंस्टिंक्ट से होगा। उसको अभी तक समझ में नहीं आता है कि ये आगे ये कैसे होगा, गवर्नमेंट कैसे करेगी, प्राइवेट सेक्टर कैसे इसके अंदर में उनका क्या उनका योगदान होगा। तो ये थोड़ा समझने वाला बात है। इसी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत सिलेक्टिव पॉकेट्स के अंदर में इन्वेस्ट करेंगे आप, तभी आपको अच्छा पैसा मिलने वाला है। केडिया जी, जस्ट अ फॉलो अप टू दैट, एंड आई अंडरस्टैंड इट कि हम समझना चाह रहे हैं एट दिस पॉइंट कि एनिमल स्पिरिट्स which way are they heading, right? The base assumption at this stage is that government will start spending more. It has already started. December, January of the turn of the year, the assumption was that they had already started spending much more, and the assumption that they will continue to do so. So that support will be there. In your estimation, the consumption that was expected to come through, and we all spoke after the budget, the tax breaks that will start in the month of April. In your opinion, are there negative factors that are curtailing that will prevent that from having a significant effect, or is it too early to say? Which effect? Sorry, please. The consumption story, the consumption benefit from the tax cuts. Are there other factors that are at play to say that yes, this is positive, but उसका impact negative है, इसलिए ये पूरा फ्लो थ्रू नहीं हो पा रहा है? देखिए, मेरे को ऐसे लगता है उसके अंदर में टाइम लगेगा। समहाउ आप ये समझिए, आप जो 11 लाख करोड़ का हमारा लास्ट ईयर का जो बजट आपने बताया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग दिसंबर से चालू हुई है, हो सकता है उसका रिफेक्ट आने के अंदर में थोड़ा टाइम लगेगा। लास्ट ईयर भी, इफ आई एम राइट, आई थिंक देयर वाज अ शॉर्टफॉल ऑफ 2-3 लाख करोड़ और समथिंग, गवर्नमेंट कुडंट स्पेंड टिल दिसंबर और उसके बाद में उन्होंने किया। इस साल का फिर इनका वापस 11-11.5 लाख का स्पेंडिंग, इनका बजट आया इनका इन्वेस्टमेंट का। मेरे को ऐसे लग रहा है ये प्राइवेट सेक्टर के साथ भी होना चाहिए, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर भी साथ में इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो बार बार हम सुनते हैं कि वो समहाउ कुछ हो नहीं रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं तक कुछ समझ रहा होगा कि वो क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहा है। चाहे उनको चाइना से चिपर उनको इंपोर्ट के कारण उनको समझिए उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या उनको फर्दर आगे कोई डिमांड उनको क्रिएट नजर नहीं आई या समझ में नहीं आ रही है। तो ये थोड़े बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। हो सकता है आज के दिन ये जो टैरिफ वेरिफ लगाया है, इसके बाद में थोड़ा सा कुछ मामला थोड़ा क्लैरिटी आए, तो मेरे को लगता है इसी को क्लियर होने में शायद और 3 से 6 महीना और इसको लगना चाहिए। तब तक इसके बारे में मेरा अपना कोई राय नहीं। ओके मिस्टर केडिया, एक शायद आपके पास फिलहाल इसका जवाब हो ना हो, आई डोंट नो, बट आई वुड लव टू टॉक टू यू मे बी अगेन टू sometime in the next 2-3 days. The couple of sectors which are a bit confusing, textiles हुआ, chemicals हुआ, for example, large India presence, duty लगी है, but neighboring countries which are higher competition have a much higher duty, right? Vietnam, Cambodia, northwards of 40%. China maybe 34 plus 20, so maybe 54%. So on a relative basis, Indian firms have a lower duty than those. Does that therefore mean that Indian textile companies या Indian chemical companies को बहुत impact नहीं पड़ा, because competitive intensity में वो लोग शायद better match कर पाए? So this is what I said in the beginning of this interview, Neeraj. This could be blessing in disguise. This is what you should find, diamond in the coal mine. This is what happens, no? ये हमारे लिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आप 27% दे रहे हैं, वो 54% दे रहे हैं, 52 दे रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं आप उसको, ये आपके लिए कितना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। तो इसको, लेकिन क्या ये इसी बोल के मैंने बोला, ये जो प्राइवेट सेक्टर है इनको आगे आकर इसका रास्ता इनको निकालना पड़ेगा कि अब हम इस अपॉर्चुनिटी का कैसे फायदा उठाएं या इस एडवर्सिटी का हम कैसे फायदा उठाएं। तो ये तो मेरे ख्याल से उनके हाथ में प्लेटर में उनको तो गिफ्ट है अगर कंपैरिजन, क्योंकि देखो दुनिया कंपैरिजन पे ही चल रही है ना, आप क्या बना रहे हो क्या नहीं बना रहे हो। अगर समझो हम लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर नहीं भी है कई चीजों के अंदर में, हमने तो टेक्सटाइल का मार्केट पूरा चौपट कर दिया ना। आप देखो तो किधर से उसके 5 साल के अंदर में वियतनाम और बांग्लादेश कहाँ से आ गए। इसके पहले तो हमारा टेक्सटाइल के अंदर था, हम लोगों ने उसको बर्बाद कर दिया। हम लोगों ने कोई भी कारण से बर्बाद किया, चाहे उसको एक्सपेंड नहीं किया या उसको मॉडर्नाइज नहीं किया या जो भी नहीं किया, कोई वर्ल्ड स्केल में हमारा नाम नहीं आया। अभी मेरे को लगता है ये हमारे लिए गिफ्ट है, अगर इसका हम फायदा उठा सकें तो बहुत अच्छी बात है और उठाना चाहिए, मेरे को ऐसे लगता है। Okay, Vijay ji, I know that we normally actually
almost always speak to you about equity, but we're speaking at a time when gold is at $3,100 plus per troy ounce. And I think if anybody has made money over the course of the last decade, it is the central bank certainly, and it is the Indian household which continues to buy gold. What is your opinion? In this current uncertain time, should investors actively consider buying gold? I may be wrong because मेरे को मालूम नहीं है, but I think that gold has also become euphoric. Like stock market was euphoric in last 2-3 years. Same thing has happened in gold also. I read somewhere that we have gotten how much 40% or 45% gold का भाव बढ़ गया 2 साल के अंदर में. In 24 and 25 अगर हम मिलाते हैं तो मेरे को लगता है गोल्ड भी बड़ा यूफोरिया हो गया है, या जैसे पहले इक्विटी मार्केट था, रियल एस्टेट मार्केट था या है, या जो भी है. गोल्ड इज ऑल्सो आई थिंक हैज बिकम यूफोरिक. So I will not buy gold at this price. Okay, don't buy gold at this price, but hang on to your gold, I assume. I think. गाना सुनाओ. हाँ? क्या बोल रहे हैं आप? गाना सुनाओ आप बोलेंगे. गाना सुनाओ. वैसे प्लान तो नहीं था, लेकिन आपका मन कर रहा है तो आप मना नहीं करेंगे. नहीं आगे बोलिए. I was going to say thank you so much for speaking with us, but Kedia ji, you're always welcome for Ghana, for poetry and for views on NDTV Profit. उसमें कोई शक ही नहीं है. नहीं तो देखिए, मैंने लास्ट गाना बोला था ये बॉटम है, इस बॉटम का कहाँ है, किधर है, नहीं है कुछ पता. ये एक भ्रम है और इस भ्रम का नहीं है कुछ पता. तो ये बॉटम का किसी को, भगवान को भी नहीं मालूम है भाई कि यहाँ पर किधर क्या मार्केट का बॉटम बनने वाला है और इधर क्या. वो जब जो लोग बॉटम सोचते रहेंगे, लेकर थक जाएंगे, उस दिन बॉटम बन जाता है. जब लगेगा और ये तो डूब जाने वाला है, तो बर्बाद हो जाएगा, उसी दिन यहाँ पर बॉटम बनने वाला है यहाँ पे. ऐसे लक्षण अभी फिलहाल नजर ही आ रहे हैं. सो मे बी दैट टाइमिंग इज राइट. Thank you, Kedia ji. And you know what I love? He always comes prepared with something, with a snippet, with us. I don't think he's prepared. No, it's all wired. Verbatim. On the spur. Yeah, the tariff song is going to be an interesting one. Thank you so much. वो बात कर. Thank you so much for speaking with us. Always.